salutation to the God, to know the God three ways, to know about the God three ways. One, the way of yoga, and the second, the way of knowledge, and third, the way of supreme knowledge. The first, yoga, the path of yoga, it has been described in the Gita. Gita, uh, very famous in the world. There has been lessons, teachings according yoga, the way of yoga, and the second, the way of knowledge. We can know from Ashtavakra Gita. Ashtavakra, the famous teacher of the world, named Ashtavakra, his Gita, Ashtavakra Gita, we can know about the way of knowledge. In the third, that is supreme knowledge, and we can know especially from Yog Vasishta Maharamayana. Yog Vasishta Maharamayana, the spiritual, famous spiritual books, supreme spiritual books, named Maharamayana. There we can get the supreme knowledge, the way of supreme knowledge. And from three ways, we can be converted. We can be converted into the God from anyone, either first way, either second way, either third way. Some on like the way of yoga, and some on like the way of the path of knowledge, which has described clearly, mostly from Ashtavakra Gita. In the third, the supreme knowledge. For supreme knowledge, very famous in the world, the name of the spiritual book is Maharamayana. The famous world teacher named Vasishta. But we should know about three habits. Three habits we should know. First, according Sanskrit word, tamasi. Second, rajasi. Third, sattvic. Habit of tamasi, habit of rajasi, habit of sattvic. We should know about this also. We should not have tamasi and rajasi. We should have a sattvic habit. Then we can know about the knowledge of the God, and we can be converted into the God. If we have no habit of sattvic habit, no, we cannot get. Never we can get. Neither in this life nor thousands life.
to know about this, we should have the habit of sattvic. It becomes mainly from vegetarian, uh, not from tamasi or rajasi. Today means 2024, in the month November, and date 16, the Saturday, presenting by President of Immortal Pleasance Center from Nepal country, from Nepal Bhairava city. About this, I explain Indian language and Nepali language. अभिवादन परमात्मा को, परमात्मा को जानने के लिए तीन उपाय है। एक योग का उपाय जो गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग का वर्णन है। और दूसरा उपाय ज्ञान का वर्णन है। ज्ञान का वर्णन का मतलब है दृष्टा दृश्य का विवेक, अर्थात दृष्टा में दृश्य कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं ठहर सकता है दृष्टा में, क्योंकि दृश्य होने के नाते नहीं ठहरता है, नहीं टिकता है। इसलिए सच है दृष्टा। दृष्टा का नाम लेने से हम लोग परमात्मा में पहुंच जाएंगे। इसके बारे में ज्यादा अच्छी तरह से वर्णन है अष्टावक्र गीता में। कई में वर्णन है, लेकिन अष्टावक्र में हम लोग आसानी से एक तरीका मिल जाता है ज्ञान का वर्णन, मतलब दृष्टा दृश्य का विवेक। और जो है तीसरा सुप्रीम नॉलेज, यह है अजातवाद। वास्तव में एक चेतन ही है, शुद्ध चैतन्य ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो कुछ है शुद्ध चैतन्य रूप है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर और भी कुछ है, ये अगर कहेंगे तो यही है बंधन। ये बंधन से कभी कोई पार नहीं हो सकता। ये जो है जातवाद का दर्शन वर्णन, ये वासिष्ठ महारामायण जो विश्वगुरु वशिष्ठ जी हैं, उनने बहुत अच्छी तरह से बतलाए हैं। इसलिए तीन प्रकार का रास्ता है परमात्मा में बदलने के लिए। एक योग का रास्ता, दूसरा ज्ञान का रास्ता। ज्ञान का मतलब दृष्टा दृश्य का विवेक, और सुप्रीम नॉलेज, सर्वोच्च ज्ञान जो है अजातवाद। वास्तव में यहाँ एक आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। जो कुछ है सब आत्मा रूप है, आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। जैसा बर्फ में केवल पानी है, बर्फ में पानी के अलावा कुछ नहीं है केवल पानी मात्र। भले दिखाई में बर्फ दिखाई देता है, लेकिन है वहाँ केवल जल भर, पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। यह अजातवाद का दृष्टांत जो सर्वोच्च गुरु वशिष्ठ जी ने योग वासिष्ठ महारामायण में 32,000 श्लोक में वर्णन किया है। ये जो है रास्ता परमात्मा में बदलने के लिए, लेकिन तीन स्वभाव को हम लोगों ने जानना होगा। तामसी स्वभाव, राजसी स्वभाव और सात्विक स्वभाव। तामसी स्वभाव से हम लोग परमात्मा के बात सुनना इच्छा नहीं करते हैं। अगर सुना जाए तो भी ख्याल नहीं करते हैं। अगर सुना ख्याल थोड़ा भी किया जाए तो लेने का कोई प्रयत्न नहीं हो जाता है, जिससे अंधेरे में जीवन बीत जाता है। ये है तामसी राजसी स्वभाव। लेकिन जो सात्विक स्वभाव है, अगर ये स्वभाव अपना है या दूसरे का है या किसी का है, बहुत आसानी से सुनने में इच्छा होता है, लेने में इच्छा होता है, धारणा करने में इच्छा होता है और बदलने में इच्छा होता है। सात्विक स्वभाव में, सात्विक स्वभाव का मूल आधार सात्विक आहार है। ये वेजिटेरियन से बन जाता है, क्योंकि सात्विक स्वभाव बिना परमात्मा में रुचि नहीं होता है।
अमर होने का, और जो आनंद ही आनंद जो है, आनंद के अलावा कुछ भी नहीं है, उसी का नाम ही परमात्मा है। ये जो अनुभव उसी को मिल जाता है जिसको सात्विक स्वभाव है। इसलिए राजसी, तामसी, सात्विक तीन स्वभाव को जानना होगा, और जानकर सात्विक स्वभाव में अपने को बदलना होगा। तभी जो है परमात्मा के आनंद जो हरदम मिलेगा, मोक्ष रूप में, अमर रूप में, परिपूर्ण रूप में, ये संभव है। इसलिए ये बात है, अर्थात रास्ता तीन है परमात्मा में बदलने के लिए। ये तीन रास्ता कोई भी पकड़े सफलता मिल जाता है। एक योग का रास्ता जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बतलाया है। दूसरा दृश्य दृष्टा का विवेक, दृश्य मिथ्या है, दृष्टा सत्य है, दृष्टा को लेने से परमात्मा सीधे मिल जाता है। ये प्रथम गुरु शंकराचार्य जी ने बहुत जोड़ करके बतलाए हैं, ताकि सबका परमात्मा में आसानी से बदलने में सहायक हो। और जो तीसरा है अजातवाद, केवल परमात्मा ही है, परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। जैसा बर्फ में केवल पानी है, पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। इस तरह से रहने से हरदम 24 घंटा 12 महीना हरदम जीवन भर, मौत के समय, मौत के बाद भी केवल आनंद ही आनंद परमात्मा रूप में समय बीतेगा, ये निश्चित है। यही बात आज जो है कार्तिक मंगशीर मार्ग शुरू हो गया। आज से मार्ग कृष्ण पक्ष प्रतिपदा शनिश्चरवार, ये जो है विक्रम संवत के अनुसार 2081 मार्ग महीना के पहला गते, एक गते बार है शनिश्चरवार। ये जो कह रहे हैं अध्यक्ष अखंड विश्व केंद्र नेपाल देश से, नेपाल भैरव शहर से कह रहे हैं अध्यक्ष अखंड विश्व केंद्र। नाम है बलराम जी सी, टाइटल से अद्वैत प्रदीप सरस्वती। जो वर्णन है अभी वो है परमात्मा में बदलने के लिए, क्योंकि हरदम आनंद का जो सूत्र है, जो रास्ता है, केवल परमात्मा ही है। हम लोग परमात्मा में बदल सकते हैं, इसके लिए तीन आधार है। इसको लाई तीनटा आधार छ। के आधार छ भन्दाखेरि योगको आधार छ, दोस्रो द्रष्टा दृश्यको विवेकको आधार छ, तेस्रो अजातवादको आधार छ। योगको लागि भगवान श्री कृष्णले गीतामा कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग जो बताउनु भएको छ, अर्थात् आत्मालाई चिन्नको लागि, आत्मालाई चिनेपछि ईश्वरलाई चिन्न सकिन्छ, ईश्वरलाई चिन्नु हो परमात्मालाई चिन्नु, परमात्मालाई चिनेपछि भगवानलाई चिनेर भगवानमा बदलिन सकिन्छ, जो ब्रह्म हो, जहाँ ब्रह्मदेखि अरू कुनै केही छैन। यस्तो प्रक्रिया छ योगमा। त्यसै गरी द्रष्टा दृश्य विवेक जस्तो अष्टावक्र गीता आदिमा पाइन्छ, यसमा द्रष्टा दृश्यको विवेक छ। द्रष्टामा दृश्य हुनै सक्दैन, अर्थात् देख्नेवालामा देखिने वस्तु ठहर्न सक्दैन। देख्नेवाला जो हो द्रष्टा, त्यो हो यथार्थ स्वरूप। यसरी द्रष्टा अर्थात् साक्षीलाई लिएपछि साक्षात् परमात्माको अनुभव हुन्छ। प्रथम जगद्गुरु शंकराचार्यले यो पद्धतिलाई खुब जोड दिनुभएको छ, जसबाट संसारका हामी सबै परमात्मा बदलिन सक्छौँ। अर्को कुरा अजातवादको सिद्धान्तमा योग वासिष्ठ महारामायण छ, जो विश्वगुरु वशिष्ठले भन्नुभएको छ। अर्थात् केवल यहाँ शुद्ध चैतन्य मात्रै छ, शुद्ध चैतन्य बाहेक अरू कुनै केही कहिले पनि छैन, जे जति भएको शुद्ध चैतन्य मात्रै हो। यस्तो अनुभव हामी गर्न सक्छौँ अजातवादमा। यो जस्तो दृष्टान्तमा बरफमा केवल देखिएको बरफ भए तापनि वास्तवमा त्यहाँ पानी मात्रै छ। सुरुमा पनि पानी हो, बिचमा पनि पानी हो, अन्त्यमा पानी हो, पानी नै पानी मात्रै हो। यद्यपि देख्नमा बरफ देखिन्छ तापनि पानी मात्रै हो। त्यस्तै संसार शरीर देखिए तापनि वास्तवमा एक शुद्ध चैतन्य मात्रै हो, देखाउटी मात्रै संसार हो, केवल शुद्ध चैतन्य परमात्मा मात्रै। यस्तो अजातवाद, यो हो सुप्रिम ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान अजातवाद। यो प्रक्रिया छ, तर यसको लागि सात्विक स्वभाव हुनुपर्छ।
राजसी तामसीको स्वभाव यदि छ भने हटाइहाल्नुपर्छ, नत्र भने यी कुराहरू बुझ्न लिन लाग्न कोही कहिले पनि सक्दैन। न यो जीवनमा सक्छ, न अरू हजारौँ जन्ममा पनि सक्छ, कहिले पनि सक्दैन। दुःखले कहिले पनि छोड्दैन। अहिले समय भएको छ, त्यति नै गरौँ। हरिओम तत्सत।